Hello everyone. So today we are concentrating over the numerical session related to the unit 1 physics part 1. So that is belongs to basically today we are concentrate over the numerical which are belongs to Gauss theorem, and we know that Gauss's theorem, yeah, Gauss law concentrate over flux. So first numerical will be related to the flux and electric field, and next numerical will also comes to the Gauss theorem, and we will use it and we will find out the relation. This one is a second. Okay, it is a bit a derivation and a graphical representation. So here a derivation and numerical both are coming in this session today. And third numerical is basically to calculate the energy, or you can say that kinetic energy acquired by the electron moving in a circular path. And another different type of question which is come many times in CBSE board examination and other competition examinations. So these are the today question, and the question fourth have the 6 question inside itself. So it is a bit longer question. Now we will start from the question 1, and slowly we will improve the level, and as well as we try to understand the concept. So let's start with the question 1. Question 1 is consider a uniform electric field E वेक्टर. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में हम देखेंगे जो क्वांटिटी हमें गिवन है सबसे पहले उसको मेंशन कर लेंगे. सो हमें दिया हुआ है ई वेक्टर 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कॉलम. ठीक है ना, न्यूटन पर कॉलम. इट्स मीन टू से दैट it is trying to say that question is trying to say that I is representing x axis. Okay, x axis. So the direction of electric field is giving, and question is asking, question is basically related to the question 1. You can say that part 1 of question 1. It is basically saying that what is the flux of the this field through a square. यानी कि अब हमें एक स्क्वायर लेना है, वो भी 10 सेंटीमीटर साइड का. ओके, वो भी 10 सेंटीमीटर square, 10 centimeter square of a side whose plane is parallel to the YZ plane. Okay, whose plane is parallel to the YZ plane. So first of all we will draw the basically given criteria. Suppose that we have these axes. These axes are basically x, y and z. These axes are basically x, y and z. We can represent with this one. So that is x axis, that is y axis, and that is z axis. In these axes a square of 10 centimeter side is given, or we know that the formula for electric flux and electric field is basically phi into E with area vector. So E and A both are the vector quantities. So here what we will see that according to the question, see this, the field electric flux through the field is square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. तो YZ plane देखेंगे हमारा कहाँ है, YZ plane ये है, ये Y है और ये Z है. तो वो जो प्लेन है जो इसमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो YZ प्लेन के पैरेलल है. तो हम एक प्लेन बनाते हैं जो कि YZ प्लेन के पैरेलल होना चाहिए. तो YZ प्लेन के पैरेलल प्लेन बनाने के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं. ये आ गई इसके पैरेलल x के, ये आ गई z के पैरेलल, नहीं ये आ गई y के पैरेलल, देन अगेन z के पैरेलल. ठीक है, और देन अगेन y के पैरेलल. तो ये हमें दिया हुआ है बेसिकली. ठीक है, ये प्लेन हमें दिया हुआ है और इसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं. इसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं. या हम कह सकते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया हमें गिवन है. तो इस तरीके से हमें इस फर्स्ट पार्ट में गिवन है.
और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द फ्लक्स, और हमसे जानना चाह रहा है कि इसका फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो पूछ रहा है इसका फ्लक्स क्या होगा। तो अब हम समझ चुके हैं सारी चीज़ें। अब आप देखेंगे ये जो हमने यहाँ पर एक शेप ली है जिसे हम स्क्वायर कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन देखेंगे पहले कहाँ है। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि हमें फाई के फॉर्मूले में एक तो ई वेक्टर चाहिए, उसके साथ साथ हमें ए वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि ए वेक्टर होता है हमारा एरिया वेक्टर बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए प्लेन है, तो एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलरली होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर आता है, या ए कैप जो इसकी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, ये आता है। तो सिमिलरली आप देखेंगे ये जो प्लेन हमने एज्यूम किया है, इस प्लेन में जो डायरेक्शन होगी इसकी, इस प्लेन का जो फेस होगा वो फेस होगा एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका जो फेस होगा, वो जो ए कैप इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। तो जब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स के अलोंग है, और एक्स की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो आई कैप रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो आई कैप है, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, वो एक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आई कैप होता है। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, जो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, इस प्लेन की, जो कि इसका फेस है टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। और इसका जो एरिया है वो हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ये बात नोटिस करते हुए चलना आप इसको। हमें इसको अब बनाना होगा, बेसिकली हमें इसको बनाना होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ई की, वो जो दी गई है वो ऐसा यूनिट सिस्टम में दी गई है, वो है ये वाली वैल्यू, ये वाली। तो ये दी गई है पर कॉलम, जो हमारी दी गई है न्यूटन पर कॉलम, ये दी गई है एसआई में। तो हमें एरिया को भी बदलना होगा एसआई में। तो एरिया जो है उसे हम बदलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम में। और अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर की साइड का जो एरिया अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, ये सेंटीमीटर में था, ये साइड थी इसकी, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। तो इसकी साइड को अगर हम निकालें तो हमारा जो एरिया निकलेगा, एरिया होता है L इंटू बी। सो वी कैन से दैट इसमें जो, अगर हम इसको देखें तो हमारा सबसे पहले तो हम रखेंगे इसमें 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और इस 10 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो डिवाइड बाय 100, तो दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा एरिया निकल कर आ गया, जो कि एरिया कुछ ऐसा होगा 0.01 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल कर आ गया, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तो एरिया जो हमारा पुट होगा वो फ्लक्स इज इक्वल टू ई नॉट, ए वाले फॉर्मूले में ए की वैल्यू हमारी आ गई और ई की हमें गिवन है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को रख देते हैं। और एक बात और इसमें नोटिस करेंगे, जो एरिया है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस है। तो हम इस एरिया को अगर एरिया वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ए कैप जो हमारा जो एरिया आएगा, मतलब ए वेक्टर जो हमारा आएगा, वो अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जो होती है वो ये कहती है कि भाई ए जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, वो इक्वल टू होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, या फिर ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से हमें ये वैल्यू होती हैं। तो हम इसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर देखेंगे क्या करना है हमें। तो हमें चाहिए यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमारा जो डिमांड कर रहा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो इस फॉर्मूले में देखेंगे ए वेक्टर ये रहा, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में ऐसे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला है जो कि ये आ रहा है मैग्नीट्यूड, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड है हमारा 0.01 का मीटर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है हमारी, ये जो डायरेक्शन है ए कैप, वो आपको इस ग्राफ में और डायग्राम में दिख रही होगी। जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और टुवर्ड एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आई कैप। तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई आई कैप की फॉर्म में, और हमने इसके पीछे यूनिट लगा दी, तो हमारा एरिया वेक्टर निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा एरिया वेक्टर निकल कर आ गया, और हमें ई जो वेक्टर है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर पहले से, ये रहा। ठीक है, तो अब हम
जैसा कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा था व्हाट इज़ द फ्लक्स, तो फ्लक्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फाई ई ए। तो हम फाई ई ए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करके हम इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो हमारा जो फ्लक्स होगा, जिसे हम फाई कह रहे हैं, वो होगा ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, एरिया वेक्टर बेसिकली। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू, ई की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ जो कि आई कैप के साथ है, गिवन है ये हमें क्वेश्चन के अंदर। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो होगा ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ ये हो गया आई कैप। ठीक है, तो अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फाई का आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। बच्चों, आई डॉट आई यानी आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप जो होता है वो सेम डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 0 डिग्री एंगल की वजह से इनकी जो वैल्यू आती है cos 0 की, वो 1 होती है। ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई की तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर भी आई की तरफ जा रहा है। तो मैं अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। इधर देखिए आप, यहाँ इस ग्राफ में। तो हमारा जो ये एरिया वेक्टर है, इसी के साथ जो डायरेक्शन है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो दोनों के बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 डिग्री हम इस फॉर्मूले में यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली होता है ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे कॉस में, तो कॉस 0 1 होता है। तो बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन रह जाता है इसमें सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन रह जाता है और बाकी जो आ जाता है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01, यानी कि ये मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। और आई डॉट आई की जो वैल्यू आ जाती है वो 1 आ जाती है। तो फाई इज इक्वल टू, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर देंगे, क्योंकि ये 0.01 है और इसकी 10⁻³ आ रहा है, तो ये सिर्फ 30 बचेगा यहाँ पर, 30। और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम्ब की पावर -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में फ्लक्स की फॉर्म में पूछा है। और मैं एक बात और आपको रिवाइज करने के लिए बता दूं कि 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर आई डॉट जे हो जाए, आई डॉट जे हो जाए, ठीक है, आई डॉट जे कैप हो जाए, जे कैप डॉट के कैप हो जाए और के कैप डॉट आई कैप आ जाए, तो दोनों के बीच या तीनों के बीच जो एंगल बनता है इस केस में वो 90 डिग्री होता है। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इस वजह से ये भी हमारा 0 आता है। तो ये तो था आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको क्लास 11th से मिल रहा है। ठीक है, 11th क्लास का टॉपिक है ये, और जो हमने यूज़ करा 12th क्लास में वो यहाँ पर यूज़ करा। तो आगे समझ में आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके वैल्यू समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको जो यूज़ करनी है वैल्यूज़ वो इस तरीके से यूज़ करनी है। ये हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया जो कि हमसे पूछा गया था। हमारा ए पार्ट जो था वो ये था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा ए पार्ट फिनिश हो गया, जिसका आंसर जो आया है वो आया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब क्या करा इन्होंने, देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस, यानी कि सिर्फ एंगल चेंज कर दिया। तो फॉर्मूले को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो फॉर्मूले में भी बेसिकली जो फ्लक्स होता है वो 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, हम बी पार्ट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्वेश्चन के बी पार्ट को। तो ई वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई होता है एरिया वेक्टर और बराबर होता है फाई के। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे जो फाई डिपेंड करता है वो 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। पहली क्वांटिटी तो ई हो गई, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वांटिटी हो गई। दूसरी क्वांटिटी एरिया हो गई। तीसरी क्वांटिटी इसके बीच में होता है एंगल थीटा। तो इन 3 क्वांटिटीज़ पर बेसिकली हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। अगर इन तीनों में से एक भी चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा। तीनों में से एटलीस्ट एक एक चेंज होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी एक साथ हो सकते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या करा इन्होंने, कुछ चेंजेस करे, और वो चेंजेस क्या करे वो मैं आपको बताता हूँ। ई को तो कांस्टेंट रहने दिया, ए को तो कांस्टेंट रहने दिया, बट इन्होंने थीटा को
अब की बार 0 डिग्री से ले जाकर, फर्स्ट क्वेश्चन में 0 डिग्री था, इस बार वो 60 डिग्री पर ले गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो थीटा इस बार जो हमारा हो गया वो 60 डिग्री हो गया। जहां हमने पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा था, यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था इसमें कि यहाँ पर ये थीटा जो है वो ज़ीरो रखे हैं हम, क्योंकि आई कैप और आई कैप की तरफ हम जा रहे हैं, और आई कैप का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, क्योंकि cos 0 1 देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है 60 आ गया, तो इसका मतलब अब हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा इन वैल्यूज़ का, और फिर हम इसमें cos थीटा 60 की वैल्यू रखेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि जो पीछे वैल्यू आई थी स्ट्रेट अवे उसमें cos 60 की वैल्यू रख दो, क्योंकि फाई तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कॉलम पर कॉलम, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, फाई, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, फाई ई ए कॉस 60 डिग्री। तो ई की वैल्यू हमें दी हुई है, ई की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इस बार हम, 10 टू द पावर क्या लेंगे, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। और हमारे पास जो एरिया आया हुआ है 0.01 आया हुआ है, और हमारे पास जो cos 60 की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो पहले का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमें पहले से ही पता है 30 आ रहा था इंटू हाफ। तो फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 15, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको करने के और भी मेथड हो सकते हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट cos 60 की वैल्यू उसमें रख के इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, और भी किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट थे, जो कि आपको बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर तरीके से एक एक बात कह के समझाए गए। तो अगर आप इसका डायग्राम समझना चाहते हैं कि भाई ये बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे हुआ, ये फिजिकली उसमें इसमें चेंज क्या आए, तो पहले तो आप देखेंगे कि आपको जो डायग्राम में जो सबसे बड़ा अंतर नज़र आएगा, वो अंतर नज़र आएगा आपको, देखेंगे यहाँ पर इस वाले केस में ये जो एक्स वाई एक्सिस थे ये पैरेलल दिए हुए थे, मतलब ये जेड और वाई के पैरेलल था। ये वाला प्लेन आपको पता हो, ये वाला प्लेन जो था ये जेड वाई एक्सिस के पैरेलल था। तो पैरेलल होने के केस में इनके बीच का जो थीटा था वो 0 डिग्री आया था, ठीक है। अब की केस में क्या है, अब के केस में ऐसा नहीं है। अब की बार क्या करा, वो जो प्लेन था, जो प्लेन हमारा जो बेसिकली था 0 डिग्री पर, वो इस बार हमने क्या कर दिया, उसको हल्का सा हमने उसको यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको टिल्ट कर दिया। तो हमारा जो प्लेन था वो अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो इस ओरिजिन के साथ यहाँ पर जो ओरिजिन हमारा है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल जो है इस बार 60 है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज़ जा रहा है। एरिया वेक्टर का क्या हुआ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो पहले इसके साथ हुआ करती थी, इसी तरफ जा रही थी, वो इस बार 60 डिग्री यानी कि इस तरफ की तरफ चलेगी, इस तरफ। तो जो डायरेक्शन है वो बेसिकली वो ऐसे हो गई इसकी, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा हमारा क्या आएगा, देखेंगे ज़रा आप, इसको देख ही रहे होंगे, ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो ये हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का ही हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो बदलने से रही, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर जो लेंगे हम सरफेस के, हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर जो है वो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका कौन सा कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। तो अगर हम इसको मेज़र करें तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाला कंपोनेंट लेना है जो कि ई के साथ जा रहा है, तो वो आएगा हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो इस तरफ जा रहा है वो होगा ई साइन थीटा कंपोनेंट। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है, वो मिडिल से जा रहा है, जो आपको दिख रहा है ये वाला जो रिजल्टेंट जा रहा है ये मिडिल से जा रहा है, ये है हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस बार जो टच करता हुआ जा रहा है इस एरिया वेक्टर को, ये है। तो इस तरीके से हमने जो कंपोनेंट लिया वो लिया ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा में 60 डिग्री वैल्यू रखने से, ई तो बदलने से रहा, ई तो वही है, 60 डिग्री रखने से हमारा जो फ्लक्स है वो 15 न्यूटन मीटर पर कॉलम हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम हो गया। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन 1, जो कि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया।
एक भी पॉइंट इसका मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है, और इसको आप सुनेंगे और ध्यान से घर पर जाकर या एक बार इसको रिवाइज करेंगे तसल्ली से बैठकर, तो आप इसको समझ जाएंगे कि भाई 1 या 2 टाइम्स में ये हो जाता है। तो आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशन है। तो आज न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों आपके लिए आए हैं। तो इसमें देखेंगे ज़रा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ेंगे। एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। तो एक वायर दिया हुआ है आपको जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और पॉजिटिवली चार्ज है। उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमें दी गई है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दी गई है हमें, वो क्या दी गई है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमें दी गई है वो है लैम्डा कॉलम पर मीटर। क्योंकि आपको अभी क्वेश्चन के अंदर एक और बात दी गई थी। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग से मतलब ये होता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग से मतलब ये होता है कि वायर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, इतना लंबा वायर है। ठीक है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, उसके ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है उस वायर के ऊपर, वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज की जो डेंसिटी है जो इस वायर पर पड़ा हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करने के लिए बता दूं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होती है, वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू यूज़ करके यहाँ पर आ रहा है। इसकी यूनिट जो होती है वो कोलॉम मीटर -1 होती है, ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होती है इसकी -1 होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद हमसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द वायर। तो इस वायर के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वायर के चारों तरफ। ठीक है ना, देखते हैं उसका पाथ क्या है। रिवॉल्विंग अराउंड द वायर सेंटर विद इट कांस्टेंट वेलोसिटी और सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया और हमें कुछ और भी वैल्यू दे दी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको सेंटर मानते हो वायर को, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किस पाथ पर, इस पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, इस वायर के अराउंड अराउंड। और इसकी हमें वेलोसिटी के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हर बार वेलोसिटी है वो ऐसे, इस सर्कुलर प्लेन के ऐसे, वो इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो वेलोसिटी दे दी हमें सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर ऑफ द वायर। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब हमसे कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए इसमें एक फार्मूला फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन बनाना है, और हमें ग्राफ बनाना है बाद में काइनेटिक एनर्जी और चार्ज डेंसिटी के बीच में। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब वो इस चार्ज के इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है रॉड, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके चारों तरफ। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है या कोई सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी समझ गए होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इसको लग रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है बच्चों mv²/r। तो m इंटू वी अपॉन आर होता है बेसिकली, सेंट्रीपेटल m इंटू वी अपॉन आर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो होता है इसमें वो होता है क्या, वो होता है v, बेसिकली इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सेंटीपेटल फोर्स दिया हुआ है, और सेंटीपेटल फोर्स देने के साथ साथ हमसे पूछ रहा है कि भाई इस पे जब ये इस चार्ज वायर के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक फोर्स और लग रहा है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो लगता है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ई इंटू ई, कैपिटल ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड।
ई बोले तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज हमारा बेसिकली, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एफ हमारा, ये जो होता है ये भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस तरीके से हमारा जो है ये एक रिलेशन बनकर आ गया ई वेक्टर का, ई का मल्टीप्लिकेशन विद इसके साथ। तो अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इसके चारों तरफ राउंड एंड राउंड सर्कुलेट पाथ में मोशन कर ही रहा है, ठीक है, कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस कंडीशन है। तो दोनों फोर्स यानी कि जो हमारा सेंटीपेटल फोर्स है एफ सी, जो एफ सी है हमारा सेंटीपेटल फोर्स, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई, ये दोनों बैलेंस्ड है क्योंकि वो लगातार सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अपना पाथ को चेंज नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हमारा जो वायर है वो भी अपनी पोजीशन पर है। तो दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से दोनों की पोजीशन अपने आप में फिक्स है। तो दोनों वैल्यूज़ को हम एक साथ रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इजिकल टू होगा रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स। क्या होगा इक्वेशन? वो होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स exerted by force exerted by the electric field will be equal to the required centripetal force। ये इक्वेशन लगेगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई हो गया, जो हमारा सेंटीपेटल फोर्स है वो ये हो गया। तो दोनों फोर्सेस ने अपने आप को बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करने की वजह से ये हमने इक्वल रख दिए। जब हमने ये इक्वल रख दिए तो अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे जैसे जैसे हमको गिवन है, और हम इस कोशिश करेंगे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी कहता है काइनेटिक एनर्जी में तब निकलूँगा जब मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर आना ज़रूरी है, तो एम तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वी आना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ से वी स्क्वायर निकालना है। तो वी स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टूडेंट ई इंटू आर अपॉन एम। तो हमें वी स्क्वायर निकालना है बेसिकली। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। सबकी वैल्यू हमारे पास क्या है? मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास का तो कोई चेंज होने से रहा। और क्या हो सकता है? और इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, तो ई अपॉन एम तो बदलने से रहे, ये तो आप ऐसे ही रहेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, ठीक है। क्वेश्चन ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? हर चीज़ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सुनकर सरप्राइज मत हुआ करो, लाइफ में सभी चीज़ों के लिए कोई ना कोई फार्मूला अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो हमने पढ़ा है, अभी हमने जो देखा भी है और पढ़ा भी है, तो अभी जस्ट हमने ऊपर एक फार्मूला लिखा था ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं चार डेंसिटी की टर्म में। तो चार डेंसिटी बेसिकली मैंने आपको लिख के दिया था ऊपर। चार डेंसिटी ये होती है। अगर आप इस फार्मूले को देखेंगे चार डेंसिटी वाले को, तो मेरे पास ये Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल की टर्म में ये हमारे पास चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। लैम्डा इंटू एल की टर्म में हमारे पास एक चार्ज आ जाता है। इसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे ज़रा कैसे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक फार्मूला है किसका? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। और F जो है यहाँ पर एक कॉलम फोर्स है, F जो है यहाँ पर कॉलम फोर्स है। तो इस फार्मूले को हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, एक्स्ट्रा में चल रहा है अभी पीछे का टॉपिक एक तरीके से रिवीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला बनकर आया है उसमें आप देखेंगे तो एफ अपॉन ई आया है, ठीक है ना, एफ अपॉन ई आया है बेसिकली। तो हमें कौन निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख देंगे इसमें। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कर देते हैं। ई इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, फोर्स आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक चार्ज से एक चार्ज कोई भी चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये सारी टर्म एक कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये चार्ज होता है बराबर क्यू हम इसको लिख सकते हैं, वो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई। Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होता है। अगर मैं Q इज इक्वल टू लैम्डा एल को यहाँ पर पुट कर दूँ
तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू के लैम्डा एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? लैम्डा एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो लेंथ है वो बेसिकली यहाँ पर नीचे जो है वो एल स्क्वायर ही है, तो एक एल से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये आर ही होती है। आर का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है, रेडियस से नहीं है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में लेंथ होती है ना कि आर, तो एल इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो एल इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो इसकी रेडियस नहीं लेते हम वायर की, लेंथ ही लेते हैं, वो बराबर डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ पर वो एल एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल से एल, तो एल अपॉन लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो लेंथ आ जाएगी बेसिकली, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, लेंथ आ जाएगी बेसिकली, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया चार्ज डेंसिटी का। इस फार्मूले को हम ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पर। कहाँ पर? इस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जो ई है, कैपिटल ई है, इसकी जगह कौन आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा के, जो कि कांस्टेंट है, लैम्डा जो कि चार्ज डेंसिटी है, अपॉन आर, और यहाँ पर आर अपॉन एम पहले से ही अवेलेबल है। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक आर से आर, ये जो येलो कलर में भी मैंने यहाँ पर राइट करा है एक्स्ट्रा में, आपको डायरेक्ट सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा वी स्क्वायर का, वो बनकर क्या आएगा? वो बनकर आएगा जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ई देखेंगे ज़रा इधर, ई का मल्टीप्लाई लैम्डा में हो जाएगा, तो ई लैम्डा, ठीक है, डिवाइड बाय के को हम ओपन कर सकते हैं। के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू हमारी क्या होगी? हमारी होगी के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिकली। हाँ, ऐसे ही तो होगी। के की वैल्यू हमारी क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी बेसिकली। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, ये बात नोटिस करने वाली है। जो के की वैल्यू यहाँ पर होगी स्टूडेंट, वो क्योंकि हमने ऊपर चार्ज डेंसिटी रखी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें डबल लेंथ आएगी उसकी बेसिकली। ये जो लेंथ है ये डबल हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ज़रा, ये जो लेंथ है ये डबल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो हम पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आर का डबल हो जाता है। ठीक है ना, आर का डबल, आर का डबल लेना पड़ेगा हमें, तभी तो वो कैंसिल आउट होंगे। तो जो ई है, यहाँ पर हम एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो ई है जो हम लेंगे वो ट्वाइस आएगा। ये जो आएगी ये ट्वाइस आएगी। ट्वाइस क्यों आएगी? ये जो लेंथ है जो हमने सर्कुलर पाथ उसका माना है वो 2 बार ट्रेवल करेगा बेसिकली इसको सेंटर के अलोंग। एक बार ऊपर का एल और एक बार नीचे का एल। ये यहाँ से एक बार ये ऊपर वाला हिस्सा, एक बार नीचे वाला। तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं इसका देखो नीचे एक और डायग्राम बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व कर रहा है। सेंटर तो ये हो गया। तो सेंटर में जो ये आर होता है ये वाला और नीचे वाला आर, तो आर और आर मिलके क्या हो जाते हैं? 2 आर हो जाते हैं बेसिकली, डाया हो जाती है। तो डाया हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है ये 2 हमारा बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। और जब हम वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो एक तो 2 तो ऊपर है ही है जो पहले से आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम इसको ओपन कर देंगे। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन करने के बाद हमारे पास नीचे जो वैल्यू रह जाती है वो रह जाता है मास। ठीक है ना, वो रह जाता है सिर्फ मास। ठीक है, मास। मास हमने 2 बार क्यों लिखा है यहाँ पर? एक बार लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, इस मास की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो ये वैल्यू यहाँ पर रह जाती है वी स्क्वायर। तो ये इससे 2 टाइम्स ही चला जाता है। 2 टाइम्स जाने के बाद वी स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई लैम्डा एम, वी स्क्वायर वैल्यू। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें सीधा सीधा रख देंगे। वी स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा रख के हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू 1/2 ई लैम्डा डिवाइड बाय एम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई? वेलोसिटी की वैल्यू आई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और मिस हो गया, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी आएगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट। और पाई, पाई कहाँ गया? पाई भी तो है, पाई कहीं चला थोड़ी गया, पाई भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 का 2 वापस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई एज इट इज़ एप्सिलॉन नॉट। और मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास से मास कैंसिल आउट होने पर हमारे पास कौन बचा? ई लैम्डा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनकर आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो होगी
वो होगी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई E इंटू लैम्डा, चार्ज इंटू चार्ज डेंसिटी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब बी पार्ट को कर लेते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछ रहा था, ग्राफ पूछ रहा था हमसे किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और चार्ज डेंसिटी के बीच में। तो एक एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए आप, और एक्स एक्सिस पर चार्ज डेंसिटी ले लीजिए आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेशन बना रही है, डायरेक्ट रिलेशन। और जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसमें ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी जो आती है वो रिप्रेजेंट करती है इस बात को। तो स्ट्रेट लाइन हमारी आ रही है इसमें, और वो आ रही है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका रिमेनिंग पार्ट अभी सेकंड सेशन में देंगे, और अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। दे आर बंडल लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, they are targeting upcoming examinations, so please concentrate over it.